चलो सो वी ऑलरेडी डिस्कस, मैंने आपको बताया था रिग्रेशन जो होता है वो जनरली वी यूज फॉर फाइंडिंग द कंटिन्यूस वैल्यू एंड देर आर टू टाइप्स. पहले अपन ने देखा था लीनियर रिग्रेशन इन विच वी हैव सम डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. With the independent variable we simply find out the dependent variable. And when we are talking about we can say logistic regression, we have the same concept, but we are finding the value is a categorical value, not a continuous value. तो linear regression में अपन क्या कर रहे थे, we have some data set and we fit the linear line in the data set that lie between that data and we find out the continuous value. But in the case of logistic regression we simply find out the classical value या categorical value. ठीक है, so it generally comes under the classification. Now when we are talking next thing, जैसे मैंने बताया था 0 and 1. So logistic regression predicts the output of the categorical dependent variable. Therefore the outcome must be a categorical or discrete value. It can be either 0 and 1. So वही चीज़ जो linear था उसके अंदर जो value थी that is a continuous value. But in the case of logistic regression we predict the value 0 or 1. It gives the probability value which lie between the 0 and 1. तो क्या मतलब हुआ, वही चीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था. When we are talking we have the value suppose 0.3, then it apply the logic and it comes to reduce to 0. And if the value will be more than 0.5, 0.6 or 7 something like that, then it convert it into the 1 something like that. So ये logistic regression, it works regression itself but it do the work of classification. ठीक है, in the same manner okay, the same thing use solving the classical problem. तो वही चीज regression अपन linear regression is used for regression problem, whereas the logistic regression is used for the classification problem. So it contain the words regression but it's simply used for the we can say classification. So it is very important. So logistic, it convert the data into the categorical form. Categorical form it means maybe a category or maybe we can say continuous discrete integer value, है ना. बट लीनियर रिग्रेशन जो होता है वो कंटिन्यूस वैल्यू के लिए यूज होता है. सो डोंट बी कंफ्यूज. ठीक है, द सेम थिंग the logistic regression, instead of fitting the regression line we fit an S-shaped logistic function which predicts the two maximum values 0 और 1. वही चीज़ लीनियर रिग्रेशन में अपन एक लीनियर लाइन को फिट करते हैं डेटा सेट के अंदर, बट इन द केस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन वी हैव सम फंक्शन एस जो कि लॉजिक परफॉर्म करता है एंड फिट द वैल्यू एग्जैक्टली 0 एंड 1. मतलब जो भी वैल्यू आएगी या तो उसको 0 में फिट करेगा या फिर उसको 1 में फिट करेगा. सेम थिंग अपने अगर इमेज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर पढ़ेंगे फजी लॉजिक्स, तो फजी लॉजिक्स भी कुछ इसी करता है. फजिफिकेशन उसमें यूज होता है, वो भी डिग्री ऑफ ट्रूथ फाइंड आउट करता है. डिग्री ऑफ ट्रूथ का मतलब सपोज देर इज एन एप्पल यू टेक अ 1 बाइट फ्रॉम द एप्पल, देन उसको आप एप्पल बोलोगे या रूट बोलोगे, तो आप बोलोगे सर इट इज स्टिल एप्पल. सपोज यू ईट इट अराउंड 80%, है ना, 20% एप्पल बचा है. नाउ यू कॉल इट एप्पल और रूट, देन यू कैन से इट इज अ वी कैन से रूट, नियर बाय रूट. तो ये डिग्री ऑफ ट्रूथ का मतलब क्या हुआ कि किसकी पॉसिबिलिटी कितनी है और उस आधार पे उसको किस क्लास में अपन डालें, है ना. वी सिंपली से लाइक दैट. फॉर एग्जांपल पास और फेल. सो वी हैव अ फंक्शन विद देन वी आइडेंटिफाई द मार्क्स विल बी द एक बॉटल नेक जो मार्क्स हैं उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से अबो है तो आप पास हैं, अदरवाइज यू आर फेल समथिंग लाइक दैट. तो रिग्रेशन टेक्स सम इंटीजर डिसकंटिन्यूस वैल्यू एंड जस्ट फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू 0 and 1, है ना. That is a logistic regression. So the curve of the logistic function indicates the likelihood of the something such whether the cell are cancerous or not, mouse is obese or not on the basis of its weights and etc. तो कोई माउस है जो मोटा फैटी है या नहीं है, या फिर जो आपके बॉडी का सेल्स है वो कैंसरस है या नहीं है. तो वी सिंपली से इट इज जनरली यूज फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, है ना, generally used for binary classification. So logistic regression is in the comes under the classification.
और मैंने आपको स्लाइड्स भी कुछ बताई थी जिसके अंदर मैंने रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के अंदर एल्गोरिथम भी बताई थी, आप लोग उसको फिर से एक बार देखिएगा, याद आ जाएगा. The same thing when we are talking about the logistic regression, significant machine learning algorithm, because it is has ability to provide the probability and classify the new data continuous and discrete data set. मतलब जो कंटिन्यूस वैल्यू है उसका उपयोग करता है और जो वैल्यू आती है वो डिस्क्रीट वैल्यू में आती है. नाउ इट अगेन एक टर्म्स अपन यूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जो भी आपके पास कंटिन्यूस वैल्यू है इट टेक अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वैल्यू एंड अकॉर्डिंग टू दैट, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वो क्लासीफाई करेगा कि इट विल गोज अंडर द 1 और इट विल गोज अंडर द 0. So in simple words, a logistic regression is a binary classification which use the continuous value and produce a classical value 0 or 1, on or off, true or false. समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? मोहित, शशांक, लोकेश, अभिषेक, प्रतीक. We already discussed the linear regression. Today we are discussing about logistic regression. बट इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, है ना. और अपन सारा सुपरवाइज पढ़ रहे हैं. सुपरवाइज का मतलब क्या हुआ, द थिंग इज दैट दे टेक इन अ डेटा सेट एंड विद द हेल्प ऑफ द डेटा सेट वी ट्रेन द मॉडल एंड व्हेन द न्यू डेटा विल कम देन विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग इट प्रिडिक्ट द प्रिडिक्शन, है ना. बहुत बढ़िया. तो अधिकतर सबके यस यस आ रहे हैं, बहुत बढ़िया. चलो मूविंग फॉरवर्ड, अगली स्लाइड में चलते हैं. नाउ वी हैव वन अ कर्व ओवर हियर, सो इट इज एज कर्व, एज फिटिंग कर्व. इसके अंदर कोई वैल्यू, सपोज वही चीज़ जैसे अपन ने डिस्कस किया था, थ्रेशोल्ड वैल्यू. सो हियर वी हैव सम थ्रेशोल्ड वैल्यू लाइक 0.5, है ना. इट वी टेक इट थ्रेशोल्ड वैल्यू, it up to the 0.5 we consider it to the point we can say x or we can say 0, and when the value is above than 0.5 then we consider it the 1. तो यहाँ पे कुछ अपन ने डेटा सेट लिए हैं, यहाँ पे डेटा वैल्यू है 5 और यहाँ पर भी डेटा वैल्यू 5. इन डेटा के वैल्यू कोई भी कंटिन्यूस वैल्यू हो सकती है. इट वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 टू 0.8 है तो इसको अपन ने 1 में क्लासीफाई कर दिया. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लेसर देन या इक्वल टू 0.5 और 0, तो 0 से 0.5 के बीच की वैल्यू है, देन वी कंसिडर इट विद अ 0. और लीनियर रिग्रेशन में आपने देखा होगा तो उसके अंदर अपन ने जो डायग्राम बनाया था वो कुछ इस तरीके का था जो कि लीनियर फॉर्म में था, और यहाँ पे आपका डेटा सेट था. तो जो डेटा सेट है उसको अपन ने लीनियर फॉर्म में क्लासीफाई किया था. एंड वी हैव सम एग्जैक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव सम डिपेंडेंट वेरिएबल. तो यहाँ पर x की वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है कंटिन्यूस, लेकिन y हमेशा या तो 0 होगा या फिर y हमेशा 1 होगा. इट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ कंटिन्यूस बट डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी अ क्लासिकल वैल्यू या अपन कैटेगरिकल वैल्यू या फिर 0 और 1 वैल्यू कह सकते हैं. अंडरस्टूड? जल्दी से बताइए, समझ में आया ये ग्राफ? Yes or no? Mohit, Shashank, Lokesh, Abhishek, Prateek, are you understood? Yes. Okay. Thank you. So don't be confused about that. That it will be a क्या category होगी नहीं होगी, but simply it is a, we can say, classical algorithm. Now again same चीज जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. So logistic regression used for concept of predicting the modeling as regression. Therefore, it is a called logistic regression. देखो यहाँ पर it uses the concept of predicting modeling. तो regression इसलिए कह रहे हैं because it takes in a continuous value, something like that. और logistic इसलिए कह रहे हैं because it predict a value discrete 0 and 1. It is called logistic. But it is used for classification sample. Therefore, it's called under the classical classification algorithm. तो इन जनरल सेम वर्ड मैंने आपको बताया, ये यूज़ करता है 0 और 1 ऐसी कोई क्लासिकल प्रॉब्लम के लिए यूज़ करते हैं. दैट्स व्हाट सिंपली कम इनटू द क्लासिकल प्रॉब्लम. सो इन सिंपल वर्ड इट इज से लॉजिस्टिक रिकर्जन इज अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम. नाउ देयर इज अ फंक्शन यूज्ड व्हिच इज सिंपली नोन एज अ सिग्मॉइड फंक्शन. आप लोगों ने सुना भी होगा.
तो सिग्मॉइड फंक्शन अपन ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर प्रोबेबिलिटी देखी थी कुछ इसी टाइप का, या डिपेंडेंसी वेरिएबल की इक्वेशंस देखी थी, तो उसी प्रकार की डिपेंडेंसी वेरिएबल की इक्वेशंस यहाँ यूज़ करते हैं। तो वो पहले इक्वेशंस देखेंगे अपन, फिर अपन बात करते हैं। तो सिग्मॉइड फंक्शन जनरली करता क्या है? सिग्मॉइड फंक्शन जनरली it produce the value 0 and 1 and it takes the any discontinuous value. So the sigmoid function is a mathematical function that used to map the predicted value to the probabilities. जो predicted values है उसको probability से अपनी चेक करता है। probabilities मतलब वही 0.5 और 0, मतलब क्या किसकी कितनी probability हो सकती है। जैसे कल की अपनी क्लास थी जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे बाइनरी ट्री क्लासिफिकेशन का जो एग्जांपल अपन ने देखा था, तो उसके अंदर अपन ने देखा था कि वी यूज सम प्रोबेबिलिटी एंड उसके अंदर जो नोड है, इंटरमीडिएट नोड है, जो डिसीजन नोड है जिसको अपन डिसीजन नोड कह रहे थे, तो वो प्रोबेबिलिटी के आधार पर नोड निकल रही थी। तो वहाँ अपन प्रोबेबिलिटी कैसे देख रहे थे कि अकरेंस किसकी कितनी ज़्यादा है। उसके अंदर मैंने इंट्रोपी का भी एग्जाम्पल बताया था, गिनी इंडेक्स का भी बताया था, गेन इन्फॉर्मेशन का भी बताया था। तो वी हैव दैट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या करते हैं अपन, किसकी अकरेंस कितनी ज़्यादा है, ट्रू पॉजिटिव वैल्यू अपन आइडेंटिफाई कर रहे थे। सो जनरली लॉजिस्टिक फंक्शन करता क्या है, वैल्यू को लेता है और उसको रियल वैल्यू 0 और 1 के अंदर वो फिट करता है। द वैल्यू ऑफ द लॉजिस्टिक रिग्रेशन मस्ट बी बिटवीन 0 and 1 विच कैन नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट, सो इट फॉर्म्स अ कर्व लाइक एस लाइक कर्व होता है। अभी अपन ने देखा प्रीवियस स्लाइड के अंदर। तो एस लाइक कर्व क्यों होता है? बिकॉज द वैल्यू विल बी द कंटिन्यूट ऑफ द एक्स बट द आउटपुट विल बी 0 and 1, और इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी। बियॉन्ड 0 नहीं जाएगी, नीचे नहीं आएगी और ऊपर भी नहीं आएगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू की बात करें 0 और 1 के बीच की सारी वैल्यू है, बिकॉज द वैल्यू विल बी ट्रू और फॉल्स। Such value above the threshold value tend to 1 and the value below the threshold value tend to 0. तो जो एग्जांपल में अभी अपन ने देखा था कि 0 जो भी वैल्यू जो है थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम या इक्वल है तो वो 0 कैटेगरी में आ रहा था, और बड़ा है तो वो अपर कैटेगरी में जा रहा था। ठीक है। सेम थिंग, डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी द कैटेगरिकल इन नेचर। वाई जो होता है वो आपका कैटेगरिकल वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि वाई की वैल्यू किससे निकल रही है, एक्स से। तो एक्स आपका इंडिपेंडेंट है, वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो ये थोड़ा सा थियोरटिकल था जो कि अपन ने ग्राफ के बारे में बताया। सो द इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉन हैविंग मल्टीपल कॉलिनियरिटी। मल्टीपल कॉलिनियरिटी का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल, मल्टीपल कॉलिनियरिटी का मतलब होता है इसकी जो वैल्यू है वो लीनियर टू अपन सपोज कहते हैं 1 लाइक 0 to 0.5 समथिंग लाइक दैट। तो मल्टीपल कोलिनियर नहीं होना चाहिए। मल्टीपल एक्सेस या मल्टीपल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लाई नहीं करेगा। एक सिंपल अपन कह सकते हैं एक वैल्यू अपन ले रहे हैं जिसकी वैल्यू 0 से 0.5 के बीच की या 0.5 से 1 के बीच की कोई वैल्यू हो सकती है, सिंपली लाइक दैट। ठीक है। नाउ लॉजिस्टिक रिग्रेशन इक्वेशन, इसे इक्वेशन की बात कर रहा था मैं, तो सिंपल सा पहले इक्वेशन को समझाता हूँ, देन थियोरेटिकल पोर्शन अपन समझते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वी कैन से लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो अपन ने लीनियर रिग्रेशन के अंदर देखा था, उसके अंदर अगर मल्टी पैरामीटर्स है, मल्टी पैरामीटर्स का मतलब अभी अपन ने जो एग्जांपल देखा था उसके अंदर एक्स के वैल्यू एक ही अपना वैल्यू था, या एक ही अपन कह सकते हैं डेटा था, एक्स एक ही फीचर्स था जिसके आधार पर अपन कैटेगरी ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए सपोज अपने पास x1 एक फीचर्स है, x2 एक फीचर्स। अगर ये बाइनरी होता तो बाइनरी के अंदर वैल्यू क्या होती है, y इक्वल्स टू b0 प्लस b1 x1। ये लीनियर जो लीनियर रिग्रेशन है सेम टू सेम उसी की इक्वेशन है। बाइनरी की वैल्यू होती है y इक्वल्स टू b0 प्लस b1 x1, जहाँ पे b1 एक कोई पर्टिकुलर फीचर्स होता, x1 पर्टिकुलर फीचर्स होता, b1 आपका स्लोप है, और b2 जो है वो इंटरसेप्ट होता y पर। लेकिन यहाँ पर सपोज आपके पास मल्टीपल फीचर्स हैं, मल्टीपल फीचर्स के आधार पर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो वैल्यू है वो 0 या 1 कौन सी क्लास में आइडेंटिफाई करेगी। अब यहाँ पर जो y की वैल्यू है, द y वैल्यू मस्ट कोई भी कंटिन्यूस वैल्यू आ रही थी, तो इसको डिस्क्रीट कैसे बनाए? तो डिस्क्रीट बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, वी सिंपली नो दैट अगर अपन ये y वैल्यू है और उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब y माइनस 1 माइनस y कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपकी y की वैल्यू है और यहाँ पे मैंने सपोज 1 माइनस वाई कर दिया। 1 माइनस वाई का मतलब क्या हो गया, अगर ये 1 है उसमें माइनस y करूँगा तो यहाँ पर इन द केस ऑफ
लॉजिस्टिक रिग्रेशन y दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो y आपका 0 हो सकता है या फिर y आपका 1 हो सकता है, ठीक है। अगर y आपका 0 हुआ, ठीक है, y आपका 0 हुआ, सो द y इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, सिंपल से 0 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये ऊपर y की वैल्यू 0 रखी, नीचे 1 लिखा और 1 माइनस 0 किया, तो 0 अपन 1, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, आपके यहाँ पर 0 आएगी। और अगर अपन 1 माइनस 1 कर रहे हैं तो 0/0, तो 0/0 का मतलब आपका क्या होगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे y की वैल्यू क्या होगी, आपके यहाँ पर 1 होगी। तो फॉर एग्जांपल ये जो इक्वेशन है y/y 1 माइनस वाई, मतलब y की इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन को अगर इसके अंदर रखेंगे और आपका जो रिजल्ट है वो अगर 0 के नियरेस्ट आ रहा है, अगर 0 आ रहा है, जो रिजल्ट है वो नियर टू 0 आ रहा है, इसका मतलब y जो है आपका 0 हुआ और आपकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी आ रही है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या हुई, आपकी 1 हुई है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसी इक्वेशंस को शो कर रहा है। तो ये डिवाइड क्यों किया, डिवाइड इसलिए किया बिकॉज वी नीड अ y वैल्यू एज 0 एंड 1। तो 0 और 1 को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ दैट सिंपली लॉजिक, अगर ये y/1 माइनस वाई जो है वो इसके इक्वलेंट्स है, अपन बात कर रहे हैं अगर इक्वलेंट्स अपन रखते हैं, सो बट वी नीड टू रेंज बिटवीन इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, देन टेक द एल्गोरिथम of the equation, it will be become something like that, in which we simply need to identify the value between we can say 0 and 1, और 0 और 1 की वैल्यू के बीच के अंदर आपकी y की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अगेन आई रीड द वर्ड्स एंड ट्राई टू explain you again. So the logistic regression equation can be obtained from the linear regression equation. linear regression की equation है। The mathematical step to get the logistic regression equation as given below. We know that the equation of straight line can be written as ये straight line के equations है, जिसके अंदर x2 x3 आपके मल्टी पैरामीटर्स हैं फीचर्स के। In the logistic regression y can be between 0 and 1 only, so for this let's divide the above equation by the 1 minus y. इस equations को अपन ने 1 minus y से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया एक y की वैल्यू सॉरी। सो इस इक्वेशन के अंडर अपन ने जो लेफ्ट पोर्शन है वी यूज जस्ट फॉर दैट, उसी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ये y/1 माइनस वाई की जो वैल्यू है वो अगर आपकी 0 आती है, इस इक्वेशन की वैल्यू अगर आपकी 0 आती है, ठीक है, देन वी कैन से y इक्वल्स टू 0, और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है तो वी कैन से y इक्वल्स टू 1। सो द अबव इक्वेशन इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो इसको अपन लॉजिस्टिक इक्वेशन रिग्रेशन की फाइनल स्टेप बोलेंगे, ठीक है। सो it was an we can say equations. Now there are some types of logistic regression. जैसे सबसे पहले अपन बात करें बाइनोमल की बात करें तो बाइनोमल की मतलब हो गया जैसे टू वैल्यूज अपन यूज कर रहे हैं, दो चीज़ों में अपन क्लासीफाई कर रहे हैं, इसको अपन बाइनोमल कहेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल सच एज 0 और 1, पास ऑफ फाइल एक्सेट्रा, ठीक है। So the binomial logistic regression there can be only two possible types of dependent variable. तो dependent variable की दो वैल्यू होंगी, या तो सच एज 0 और 1, पास और फेल एक्सेट्रा। मल्टीनोमियल की बात करें तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड टाइप का मतलब क्या हो गया, कोई भी कैटेगरी हो सकती है, लाइक अ डॉग, कैट, शीप, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर कैसे कैटेगरी हो रही है, अभी अपन ने देखा इन जनरल जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो दो क्लासेस में कर रहा है, 0 और 1 में, ठीक है। लेकिन 0 और 1 में भी y की वैल्यू क्या आएगी, सपोज अपने पास 3 क्लासेस है, 3 क्लासेस मतलब अपने पास डॉग है, कैट है, शीप है, ठीक है। तो कैट के लिए भी 0/1 रहेगा, डॉग के लिए भी 0/1 रहेगा, शीप के लिए भी 0/1 रहेगा, ठीक है। और जिसके लिए 1 आएगा, शीप के लिए अगर 1 आया तो वो एनिमल जो है वो शीप होगा, डॉग के लिए 1 आया तो वो डॉग होगा, और कैट के लिए 1 आया तो वो कैट होगा, और बाकी के लिए सबके लिए क्या होगा, 0 होगा। तो सिमिलरली अगर मल्टीनोमियल की बात करें तो वह जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल अनऑर्डर्ड है, सो इन द मल्टी लेवल लॉजिस्टिक रिग्रेशन देयर कैन बी 3 और मोर पॉसिबल अनऑर्डर्ड टाइप ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। वही चीज़ डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y की जो वैल्यू है वो कौन सी क्लासेस हो सकती हैं, मल्टी क्लास हो सकती हैं। जैसे बाइनोमल में तो एक ही क्लास होगी, पर डोंट बी कंफ्यूज, हमेशा सिग्मोइड फंक्शन ही होगा, वैल्यू 0 और 1 के बीच की होगी,
शशांक क्या पूछ रहे हो आप, लॉग वाली वैल्यू? हम्म। लॉग का इसमें नहीं था, लॉग का तो अपन ने बाइनरी ट्री देखा था, ट्री क्लासिफिकेशन उसमें देखा था, इसमें कहाँ है लॉग का? इसके बाद वाली स्लाइड सर, इसके बाद वाली स्लाइड। इस वाली में, इस वाली में? हाँ इसमें। अच्छा इसमें ये है। हाँ ये। हम्म। But we need to range between minus infinity to positive infinity, then take logarithm of the equation. It will become. तो ये log लेके ये इक्वेशन कैसे बनेगी सर? अच्छा, ये लॉग लेके इक्वेशंस किस तरीके से आई, यूँ कह रहे हो आप? हाँ ओके, सो व्हेन वी डिड y इक्वल्स टू समथिंग लाइक दैट, y इक्वल्स टू y बराबर ये इक्वेशन है, इसको अपन ने दोनों से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद जब दोनों तरफ लोग लेंगे तो y ओपन वन माइनस वाई और b इक्वल्स टू बी जीरो बी वन, ये कैसे आए, ये कह रहे हो आप? सर, एक तो दोनों तरफ वन अपॉन सॉरी वन हाँ, माइनस वाई से दोनों डिवाइड तरफ होगा। लगाया अपन ने, उसके बाद उसका लॉग लिया, देन इट इज अ फाइनल रिजल्ट। मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही लिखा है, जस्ट राइट आउट द फाइनल रिजल्ट। सर पर कुछ चेंज तो हुआ ही नहीं है लॉग लगाने के बाद भी, और अपॉन वन माइनस वाई से डिवाइड करने पर आरएचएस में भी कोई चेंज नहीं दिख रहा है। आर एच एस एज इट इज लिखा है अपन ने, और एल एच एस में सिर्फ अपन वन माइनस वाई लगा दिया है। पर सर ऐसे डिवाइड तो दोनों तरफ होगा ना, अगर किसी इक्वेशन को किसी भी टर्म से डिवाइड करेंगे तो। ओके, सो लेट वी चेक इट आउट। अभी फिलहाल अपन इसको यहाँ छोड़ते हैं, आई विल चेक इट आउट सिंपली। ये जो इक्वेशन है उसको वन अपॉन वाई से डिवाइड करके विल टेक द लॉगरिथम एंड वी विल गेट द दिस रिजल्ट, है ना? सो वी होल्ड इट दिस क्वेश्चन, इसको मैं चेक कर लूँगा, ठीक है? ओके सर। चलो, till now, for the theoretical purpose you remember that it is a linear equation. We need to find out the value 0 and 1, that's we will divide a 1 minus 1 minus y, and after the taking log we're taking this value, ठीक है? इसका आंसर अपन चेक कर लेंगे। We have this doubt over here, तो I will check it out and explain you, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। सो अगेन गोइंग दिस, सो ये मल्टीनोमियल की बात करें तो मल्टीनोमियल के अंदर वी हैव सम कैटेगरी, मोर देन वन, मोर देन टू कैटेगरी, लाइक कैट, डॉग और समथिंग लाइक दैट, बट द वैल्यू विल बी ऑफ दैट विल बी जीरो एंड वन। उसकी किस कैटेगरी में आ रहा है, उस कैटेगरी की वैल्यू जीरो और वन में आएगी, है ना? वो सिग्मोइड फंक्शन ही होगा, लेकिन मल्टी क्लास हो सकता है, ठीक है? सो अंडर अनऑर्डर्ड है, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। अनऑर्डर्ड इट मीन्स द वैल्यू जो है वो अनऑर्डर्ड है, कोई भी कैटेगरी हो सकती है, कैट, डॉग, समथिंग लाइक दैट। और ऑर्डिनल की वैल्यू बोले, ये भी मल्टीनोमियल की तरह ही है, लेकिन उसकी जो कैटेगरीज होती है वो ऑर्डर्ड होती है, लाइक वी कैन से मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम। तो कोई ऑर्डर्ड अपने पास अगर आ रहा है तो समथिंग लाइक दैट। सो इन लॉजिक, ऑर्डिनल लॉजिक रिग्रेशन देयर कैन बी थ्री और मोर पॉसिबल ऑर्डर टाइप फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल सच ए लॉज, मीडियम, हाई, ऐसा कुछ आपका है। तो ये अनऑर्डर्ड ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये आपके कैट, डॉग, समथिंग लाइक दैट, क्या उनकी वैल्यू क्या आएगा, ये जो है वो अनऑर्डर्ड है। जबकि अगर वही वैल्यू अगर ऑर्डर्ड वैल्यू होती, जिसके अंदर मल्टी क्लास आती है आपकी, लो, मीडियम, हाई, समथिंग लाइक दैट, ऐसी कुछ वैल्यू आती, तो इसके अंदर अपन क्या कह सकते हैं, सच एज ऑर्डर्ड वैल्यू अगर होगी तो उस टाइप ऑफ लॉजिकल लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अपन कहेंगे ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो इन जनरल और अलग अलग कैटेगरीज भी कहीं कहीं वर्ड्स में लिखी होती हैं, बट इन जनरल अगर अपन बात करें तो बाइनोमियल के अंदर जो आपकी वैल्यूज होती है, द डिपेंडेंट वेरिएबल सच एज जीरो एंड वन, पास और फेल, समथिंग लाइक दैट। सो द ओनली टू टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं आपके, जीरो एंड वन, है ना? आउटपुट अपने पास जीरो एंड वन में आएगा।
लेकिन अगर अपन मल्टीनोमियल की बात करें तो मल्टीनोमियल की जो y अपने पास वैल्यू आएगी, इट इज़ इन अनऑर्डर्ड एनी टाइप लाइक कैट डॉग समथिंग लाइक दैट। और अपन ऑर्डिनल की बात करें तो ऑर्डिनल के अंदर जो वैल्यू आएगी, इट इज़ सम ऑर्डर्ड वैल्यू, डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो ऑर्डर्ड वैल्यू होगा लाइक लो मीडियम एंड हाई, ठीक है। लेकिन जो रिजल्ट आएगा डेट इज बस्ट बेस्ड ऑन बाइनरी क्लासिफिकेशन के आधार पर ही आएगा, लॉजिस्टिक वैल्यू निकलेगी। और जो लॉजिस्टिक वैल्यू होती है वो लॉजिस्टिक वैल्यू कंपेयर होगी कौन सी क्लास के इक्वलेंट है। सपोज कोई एनिमल है, किसी की उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो 80% डॉग से मिल रहा है, तो देन दैट इज़ फॉल इनटू द डॉग कैटेगरी, ठीक है। और वो 3% डॉग से मिल रहा है, और शीप से आपका 0% मिल रहा है एग्जैक्टली, और कैट से आपका 70% मिल रहा है, तो देन दैट इज कैटेगरीज फॉल इनटू द कैट समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो रेंज तो वही 1 0 और 1 ही असाइन होगी सबको। तो अगर डॉग 1 हुआ तो कैट और शीप आपकी 0 वैल्यू असाइन होंगी, तो दैट्स वाई द कैटेगरी विल बी डॉग समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उसको अपन डिस्कस करते हैं। हर एल्गोरिथम में अपन ने लिखा है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज स्पेशली mean for the classification. It is useful in the understanding how a set of independent variable affect in the outcome of the dependency variable. तो जनरली दो चीज़ें इसके अंदर हैं। नो डाउट रिग्रेशन मीन्स द नॉट मीन्स द रिग्रेटिव टेक्निक, इट इज यूज फॉर द क्लासिफिकेशन। और डिपेंडेंट वेरिएबल के आधार इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर डिपेंडेंट की वैल्यू कैसे चेंज होती है, अगर प्रोबेबिलिटी आपकी समथिंग लाइक दैट 0.5 से अप हो या डाउन हो, उस तरीके से अपन कह सकते हैं। और डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जनरली अपन 0 और 1 क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई और हुआ जिसकी प्रॉपर्टी सपोज सबकी 0.5 समथिंग कुछ आया, ठीक है, तो वी कैन नॉट क्लासीफाई दैट ये किस में जाएगा। सिंपल से अपन ने 0 लिख दिया तो सारे 0 हो जाएंगे, किसी भी क्लास के अंदर नहीं जाएगा। So the main disadvantage of logistic regression algorithm is that it only work with the prediction variable is binary. तो prediction variable binary हो, यानी कि true or false, on or off, yes or no, 0 and 1 something like that, तो ही ये काम करेगा। It assume that the data free of missing value, ये missing value क्या होती है सबको पता होनी चाहिए। जो डेटा सेट होता है आपका .csv फाइल के अंदर, जो अपन डेटा सेट कहते हैं, उसके अंदर कुछ वैल्यू मिसिंग होती है, और आउटलायर्स जो होते हैं वो उसके अंदर नहीं होना चाहिए। प्रिडिक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ईच अदर, और जो भी प्रिडिक्टर्स हैं, प्रिडिक्टर्स मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी फीचर्स को, फॉर एग्जांपल रिजल्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट के अंदर नंबर ऑफ स्टडी हावर्स, नंबर ऑफ क्लासेस टेकन, ठीक है, ये सब आपस में, ये जो फीचर्स हैं, अटेंडेंस, ये सब फीचर्स जो है वो आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर ये इनकी डिपेंडेंसी आपस में है तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इन जनरल इसका मेन एक ही डिसएडवांटेज है कि ये कैटेगरी में 0 और 1 में ही आइडेंटिफाई करता है, इन बिटवीन ही आइडेंटिफाई नहीं करता, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल शुरू में मैंने आपको बताया था। इट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर ऑफ द डायसिस। कोई भी बीमारी है उसका क्या आपका रिस्क फैक्टर हो सकता है। वर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं। वेदर प्रिडिक्शंस, वेदर प्रिडिक्शन क्या होगा, बाइनोमियल या मल्टीनोमियल। तो अगर अपन मल्टीनोमियल की बात करें तो मल्टीनोमियल में क्या होता है आपका, वी कैन से वी हैव मल्टीपल क्लासेस दैट क्लाउडी, सनी, है ना, रेनी, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वेदर को वो सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद उसकी जो वैल्यू होगी उसको उस क्लासेस से मैच करेगा, किसकी वैल्यू 1 आ रही है, जिससे 1 से मैच होगा, लाइक वेदर से मैच, लाइक वी कैन से रेन से मैच हुआ या फिर क्लाउडी से मैच हुआ, तो जिससे भी वो मैच होगा वो वैल्यू आपको ऑड्स वेदर प्रेडिक्शन में मिल जाएगी। तो वेदर प्रेडिक्शन के अंदर भी अपन लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ करते हैं। वोटिंग एप्लीकेशंस, विन कौन सी पार्टी विन कर रही है, ठीक है, तो ये भी बाइनोमियल नहीं होगा, मल्टीनोमियल होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पार्टीज हो सकती हैं, और उन पार्टी में भी कौन जीतेगा, रिजल्ट तो एक का ही 1 आएगा, बाकी सबका 0 आएगा, ठीक है। तो वोटिंग एप्लीकेशंस में भी इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज़ वन होमवर्क फॉर यू, वो आपको करना है, जो कि गूगल क्लासरूम का होमवर्क पे चढ़ा के मैं आपको शेयर कर दूंगा आज। तो जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, एक क्वेश्चंस लिख लें आप लोग। द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है,
और दोनों वर्ड रिग्रेशन रिग्रेशन है, तो क्या डिफरेंस है क्या नहीं है आप लोग प्लीज़ इसको करें और करके आई विल शेयर द लिंक बिफोर द एंड ऑफ द डे एंड यू विल बी अपलोड द PDF ऑफ हैंड रिटन नोट्स ऑन इट, हैंड रिटन लिख के उसको आप अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़े, एक डाउट जो है वो इसमें अपन ने छोड़ रखा है द लॉगरिथमिक इक्वेशन, उसके अलावा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आया व्हाट इज द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अगर आपको बोला जाए लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है तो वी कैन एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट इट, यस और नो। बाकी लोग, मोहित, लोकेश, अभिषेक, प्रतीक, टेल मी, जल्दी से बताइए। बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी या क्वेश्चन लिखने में बिजी हो? क्वेश्चन लिख लिया सभी लोगों ने? होमवर्क लिखना है आपको। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड लीनियर रिग्रेशन, ये आज आपको होमवर्क में करना है और पॉजिटिवली सबको ये सबमिट करना है, ठीक है। सो आई विल ट्राई कि हर क्लास में अपन कुछ क्वेश्चन लें और एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थ्योरिकल एग्जाम, आपके जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपका पाइथन कोड इतना नहीं आएगा, द कॉन्सेप्ट एंड सम मैथमेटिकल इक्वेशंस वो आपको एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछेंगे, ठीक है। और लैब का जो है उसका अलग कॉन्सेप्ट है। इन सब के कोड हैं अपने पास, बट नो डाउट द कोड नीड सम प्रायर नॉलेज ऑफ पाइथन एंड ऑपरेशन समथिंग लाइक दैट, ये सबके कोड हैं। तो आपको सारे कोड भी रन करके बता देंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन बायस अपन ने पढ़ा, बाइनरी ट्री के हिसाब से पढ़ा, लीनियर पढ़ा, तो सबके एग्जांपल एक साथ देखेंगे तो सब में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा और किसका यूज़ रिग्रेशन में हो रहा है किसका क्लासिफिकेशन में हो रहा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो, सो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू वर्क अबाउट द के नियरेस्ट नेबर। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर एल्गोरिथम जिसके अंदर अपन नंबर ऑफ की को आइडेंटिफाई करते हैं, की फीचर्स अपन आइडेंटिफाई करते हैं और इसका यूज़ अपन किसी न किसी कैटेगरी से मैच करने के लिए करते हैं। सो के नियरेस्ट नेबर इट इज़ आल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ वी कैन से क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। इसके अंदर नेबर, नियरेस्ट नेबर का मतलब ये होता है कि अपन सपोज एक और चीज़, लेज़ी और ईगर लर्निंग मैंने चीज़ें बताई थी आपको। लेज़ी के अंदर क्या होता है कि ट्रेनिंग का टाइम वो नहीं देता है लेकिन प्रिडिक्शन के अंदर मोर टाइम लेता है, और ईगर के अंदर क्या होता है इट टेक्स अ मोर टाइम इन द ट्रेनिंग बट प्रिडिक्शन के अंदर बहुत कम टाइम लेता है। तो दो प्रकार की लर्निंग होती है, लेज़ी और ईगर। तो ये एक तरीके से लेज़ी लर्निंग का एग्जाम्पल है, बिकॉज जो डेटा सेट होता है ट्रेनिंग डेटा सेट वो एज इट इज़ सेव कर दिया जाता है इस एल्गोरिथम के अंदर, और जब भी कोई न्यू डेटा आता है तो उस न्यू डेटा के फीचर्स के वैल्यू के आधार पे अपन मैच करते हैं स्टोर्ड डेटाबेस में। स्टोर डेटाबेस में जिससे वो मैच होगा, जिसके वो नियरेस्ट होगा, जितने नेबर से मैच हो रहा है, जितने नेबर से वो नियरेस्ट है, वो वैल्यू वहाँ पर शो हो जाएगी, उसके अंदर वो कैटेगरी के अंदर चली जाएगी। सो इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको स्टार्ट करना हो व्हाट इज़ द के नियरेस्ट नेबर, देन यू कैन टेल, आप कह सकते हैं कि के नियरेस्ट नेबर इट इज़ अ सुपरवाइज classification learning algorithm. It depends on the nearest neighbor property matched with the property of k value of a input data. देखते हैं theoretically क्या क्या इसके अंदर है। So k nearest neighbor is one of the simplest machine learning algorithm based on the supervised learning technique. KNN algorithm assume that the similarity between the new case data and available case and put the new case into the categorical it most similar to the available category। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अपने पास कुछ पहले से क्लासेस होती हैं, नया डेटा आता है, तो जो डेटा अपने पास सेव है जिसको अपन ट्रेनिंग डेटा कहते हैं, लेबल्ड डेटा कहते हैं, वो जिससे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की मैच हो रही है उसमें इसको अपन नए डेटा को असाइन कर देंगे। एग्जाम्पल है आगे देखेंगे ग्राफिकल फॉर्म में। देन के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम स्टोर ऑल द अवेलेबल डेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि सारे डेटा जो स्टोर कर देता है, एंड क्लासीफाई द न्यू डेटा पॉइंट बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज़, और नया पॉइंट अगर आता है तो जो स्टोर डेटा है उससे जिससे ज़्यादा सिमिलर हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली क्लासीफाई कर देगा। दिस मीन दैट न्यू डेटा अपीयर्स व्हेन इट कैन बी इजीली क्लासीफाई इनटू द वेल सूटेड कैटेगरी बाय द KNN एल्गोरिथम। जब भी कोई नया डेटा आता है तो वो जिससे सिमिलर होगा उसमें इसको सिंपल सा क्लासीफाई कर देंगे।
देन वही चीज़ we can simply say algorithm can be used for regression as well as classification, but mostly it is used for classification. तो इन जनरल अपन कह सकते हैं कि इट इज़ यूज फॉर बोथ प्रॉब्लम, रिग्रेशन में भी इसका उपयोग होता है और क्लासिफिकेशन के अंदर भी इसका उपयोग होता है, पर जनरली इसका यूज़ क्लासिफिकेशन के अंदर किया जाता है, तो इट इज़ फॉल अंडर द क्लासिफिकेशन कैटेगरी. नॉन पैरामीट्रिक एल्गोरिथम विच मीन डज नॉट मेक एनी एजम्पशन और अंडरलाइंग डेटा. जैसा आपने अभी देखा था, जस्ट प्रीवियसली अपन ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखा था, उसके अंदर ये क्या कर रहा था, जो वैल्यूज़ आ रही, जो भी कंटिन्यूस वैल्यू आ रही थी, उस कंटिन्यूस वैल्यू को किसी डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा था. तो ये मान के चल रहा है कि अगर वैल्यू इतनी होगी तो ये हो जाएगा. वी कैन से we do something assumption or we do something logically to take the value till the 0 or 1 something like that, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता आपका. इनिशियली मैंने आपको बताया था इट इज़ अ लेजी लर्निंग एल्गोरिथम. लेजी क्यों है? बिकॉज डेटा सारा एक बार में सेव कर देता है और जब नया डेटा आता है तो अपने सेव डेटाबेस में वो चेक करता है कि किससे प्रॉपर्टीज़ की मैच हो रही है और जिससे मैच होती है उसको प्रिडिक्ट कर देता है. सो इट टेक्स लेस टाइम टू लर्निंग बट इट टेक्स मोर टाइम टू प्रिडिक्ट. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ लेजी लर्निंग. And can an algorithm at the training phase just store the data? Simply store कर देता है, and when get the new data it classify the data then category that much is similar to that new data. तो जब भी कोई डेटा ट्रेनिंग डेटा होता है उसको सिंपली स्टोर कर देता है, और जब न्यू डेटा आता है उससे सिमिलरिटी देखता है और जिससे ज़्यादा सिमिलर हो उसमें वो क्लासीफाई कर देता है. सो इट इज़ ऑल अबाउट अ थियोरटिकल पोर्शन. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है देखें. वी हैव सम न्यू डेटा एंड वी स्टोर द ट्रेनिंग डेटा. ये आपके ट्रेनिंग डेटा है, ठीक है, और ये ट्रेनिंग डेटा जैसे इनपुट में आएगा इट मैच विद अ पर्टिकुलर वैल्यू कि इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच हो रही है, इससे मैच हो रही है फिर इससे मैच हो रही है, ठीक है. सी in the case of logistic regression we have some continuous value and we predict the classical value, but we do some assumption. But in the case of Cannon algorithm we don't do some assumption, we simply match exactly the similarities, है ना, and which match and assign the value. तो ये इनपुट वैल्यू आया, डेटा सेट ऑलरेडी आपके पास सेव था, इसने इसके साथ मैच किया और जो वैल्यू आई उसने इसको प्रिडिक्ट कर लिया कि ये कैट है. So it is simply example जो कि words में लिखा है. Suppose we have image of the creature that looks similar to the cat and dog, but we wants to know either it is a cat or dog. So this identification we can use a Cannon algorithm. Now model will be find the similarity features of the new data set, cats and dogs image. तो ये किसके साथ इसके फीचर्स मिल रहे हैं वो आइडेंटिफाई करेगा, और जिससे सबसे ज़्यादा मोस्ट सिमिलरिटीज़ हैं पुट द आइदर इन टू द डॉग और कैट, तो जिससे मैच हो रहे हैं उस कैटेगरी में ये इसको पुट कर देगा. सो द नेक्स्ट वी कैन से इट इज़ अ लास्ट ऑफ दैट. इसका मैथमेटिकल पोर्शन, ग्राफ पोर्शन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. सो इसकी आवश्यकता क्यों है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इट, व्हाट वी रिक्वायर्ड द कैनन एल्गोरिथम, सपोज लाइक दैट, क्यों इसकी आवश्यकता है. So suppose there are the two categories like category A and category B, and we knew data is point x1, so the data point will be lie in which this category. For that, to solve this type of problem we need a Cannon algorithm. So generally for example we have some classification class A and class B, and when the new data will come then we need to identify that x1 will go to the class A or class B. For such classification we use a Cannon algorithm. See, there are scenario where the one data set we use Cannon algorithm, we use logistic regression, so many things, है ना, एग्जाम्पल में अपन देखेंगे. लेकिन कहाँ पर क्या सूट होगा, वहाँ पर ये भी सूट हो सकता है, यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी सूटेबल हो सकता है. With the help of Cannon algorithm we can easily identify the category or class on the basis of similarity of the features. तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सम डेटा कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी के डेटा अपने पास है. जब कोई न्यू डेटा आता है तो कैनन एल्गोरिथम क्या करेगा, अपने पास कैटेगरी ए के कितने सैंपल्स हैं और कैटेगरी बी के इतने सैंपल्स हैं. जब कोई न्यू कैटेगरी आई, जो न्यू डेटा आया, इसकी प्रॉपर्टी इसके अंदर सेव सैंपल्स के कितनों से मिल रही है या इसके कितनों से मिल रही है, जो सबसे ज़्यादा उससे मिलेगी उस कैटेगरी में इसको अपन आइडेंटिफाई कर देंगे, ठीक है.
तो इसकी प्रॉपर्टी जो थी, सपोज ये इस वाले से ज़्यादा मिल रही है, तो अपन ने सबको किस में आइडेंटिफाई कर दिया, क्लास ए में। तो KNN एल्गोरिथम क्या करता है, इट सिंपली टेक अ इनपुट न्यू डेटा, इट मैच द फीचर्स विद द ऑलरेडी स्टोर्ड द डेटा सेट, जो स्टोर डेटा सेट है उसके साथ ही फीचर्स को मैच करता है। वॉइस प्रॉपर नहीं है, अभी भी नहीं आ रही है शशांक वॉइस मेरी, माई वॉइस इज स्टिल डिस्टर्बिंग, अभी भी डिस्टर्ब हो रही है या आप परेशान कर रही है आपको, या अब सही आ रही है, अभी ठीक है, ओके। So simply it is an example when we have some category and we wish to identify the which category falls for the new data, so we simply use the KNN algorithm, है ना। So it is all for today. Tomorrow we will discuss some mathematical equation of categorical KNN algorithm and how it works, what are the function is used in जिससे इसमें इक्विवेलेंट डिस्टेंस अपन यूज़ करते हैं, जिसके अंदर k की वैल्यू क्या है, k किस लिए यूज़ करते हैं, दैट आर थिंग्स आर कम अंडर द पिक्चर्स। तो टुमारो क्लास में अपन ये सारी चीज़ें देखेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग वी विल टेक अ क्वेश्चंस ऑफ टुडेज क्लास कि जो एल्गोरिथम लेते हैं उससे अपना जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसकी इक्वेशंस कैसे आती है। सो आई विल स्टार्ट द क्लास टुमारो इन द सेंस नेक्स्ट क्लास जब भी होगी इसकी, तो अपन पहले डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम देन विस, ठीक है। So any questions? See, we are mainly discussing, we can say